Jai Hind class 11th. How are you all? I hope you all are doing fine. Continuing with chapter number 2, that is forms of business organization. My dear students, yesterday we are done with the type of partners. We are done up to type of partners. There are 5 type of partners: active or actual partners, sleeping or dormant partners, secret partners, nominal partners, partner by estoppel. Today we are going to start with the another topic, and that is Hindu undivided family business. Hindu undivided family business. What is it? That is coming from generations to generation. The Hindu undivided family firm is a form of business organization. Hindu undivided family firm is a form of business organization in which the family possesses some inherited property and the Karta, the head of the family, manages its affair. What does it mean? It means that it is a form of organization जिसमें फैमिली के पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो जनरेशन से जनरेशन पर ट्रांसफ़र होती है. ऑल राइट. एंड हु इज़ द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली इज़ द कर्ता. Karta is the head of that family. He manages all its affair. ठीक है, चलो डीपली पढ़ते हैं थोड़ा सा. When it came into existence by the operation of Hindu law. ठीक है, and it is different from the contract between the partners or coparceners. What is coparceners? 3 generation नेक्स्ट टू दी होल्डर, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उससे आगे की 3 जनरेशन्स. ठीक है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं होती है किसी के भी बीच में. इट्स जस्ट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज देयर विद यू एंड द हेड ऑफ द फैमिली बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली. ठीक है, ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो. इफ द पर्सन हु हैव coparcenary इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैरी ऑन बिजनेस. अगर कोई पर्सन, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो बिजनेस कर सकता है उसके साथ. एंड इट इज़ द केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली. सो द जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ बिजनेस बाय द coparceners ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड एस्टेट और प्रॉपर्टी. Business by coparceners. Coparceners means the one who owns the property, the 3 generation next to the holder of the property. ठीक है, देखो थोड़ा डीपली पढ़ते हैं इसको. 3 जनरेशन नेक्स्ट टू द होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, द वन हु इज़ द होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, उससे आगे की 3 जनरेशन इन अनब्रोकन मेल लाइन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल लाइन. 3 मेल्स, राइट, 3 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मेल्स. नेक्स्ट जनरेशन किससे? द वन हु होल्ड द प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट अ coparcenary. दे डू नॉट बिकम द पार्टनर्स. They do not become the partners according to Hindu law, right? And property inherited by a Hindu from his father. जो property होती है from his father, father's father and father's grandfather. It is regarded as ancestral, पूर्वजों की property. ठीक है, are you getting it? In just simple word I am telling you, here we are talking about 3 generation next to the holder of the property. किसी की प्रॉपर्टी है, let's suppose उस प्रॉपर्टी परचेज की है उन्होंने, उनके आगे की अनब्रोकन 3 जनरेशन्स मेल की, that is regarded as ancestral property. A son, grandson, great grandson become the joint owner of the family property. Why? By the reason of their birth in the family, because they have a strong reason. Because of their birth in the family, right, they ultimately become the owner of that family. प्रॉपर्टी को मैनेज करता है कोई सीनियर मेल मेंबर, जैसे फादर, ग्रैंडफादर. ही बिकम्स द हेड ऑफ द फैमिली. और क्या कहा जाता है उन्हें? कर्ता, राइट. देयर आर 2 systems which govern the membership of joint Hindu family business, right? First is Daya Bhaga, second is Mitakshara system.
दया भागा सिस्टम वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होता है. इसमें बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स बिकम दी कोपार्टनर्स. बट मिताक्षरा सिस्टम इट ओनली अलाउज मेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी द कोपार्टनर. ये पूरी इंडिया में है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. सिर्फ वेस्ट बंगाल में फीमेल मेंबर इन दी जनरेशन दे कैन बिकम दी कोपार्टनर ऑल्सो. राइट. The Hindu Succession Bill 2004 seeks to give women equal right in inheritance of ancestral wealth. अभी आपने पढ़ा होगा जो बिल पास हुआ था हिंदू सक्सेशन बिल 2004, उसमें नाउ द वीमेन्स हैव इक्वल राइट इन द एंसेस्ट्रल वेल्थ. ये बहुत बड़ा स्टेप था जेंडर इक्वालिटी के लिए. अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो व्हेन वीमेन आर गेटिंग राइट फ्रॉम इन द एंसेस्ट्रल वेल्थ, सो दैट इज़ अ बिग स्टेप. In other words, female will have equal rights along with males in the family. किस पर? उनकी ancestral property पे फीमेल का भी उतना ही अधिकार है जितना मेल्स का है. राइट. वेस्ट बंगाल में तो फॉलो ही नहीं होता है. वेस्ट बंगाल में तो द फीमेल्स ऑल्सो कंसिडर टू बी द कोपार्टनर्स. राइट. वो जनरेशन्स में आती हैं फीमेल्स भी. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? द वेरी फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन. सी, जो मेंबरशिप होती है ना इस बिजनेस में, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टेटस अराइजिंग फ्रॉम द बर्थ इन दी फैमिली. मेल मेंबर का बर्थ हुआ है फैमिली में, वो ऑटोमेटिकली कोपार्टनर बन जाता है. इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी फैमिली मेंबर. किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. घर में बेटा हुआ है मेल, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट. वेस्ट बंगाल में तो ऐसा है ही नहीं. सो अल्टीमेटली बिकम दी कोपार्टनर. राइट. Then comes liability. The liability of all the member of the Hindu joint family except that of the Karta is limited. Karta is the head of the family. उसके अलावा बाकी सबकी liability जो होती है वो limited होती है. ठीक है. The liability of the Karta is unlimited, क्योंकि वो he owns as his separate and private property. वो उसकी property होती है separate और private property. सो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और बाकी रेस्ट बनते हैं दे विल बिकम दी कोपार्टनर. बट अभी तो द हेड ऑफ द फैमिली मैनेजेस ईच एंड एवरीथिंग, तो ही बिकम दी अनलिमिटेड ही हैज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिकॉज ही इज़ द ओनर. ही ओन्स एज हिज सेपरेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. राइट. देन कंट्रोल बाय कर्ता. सारा कोई बिजनेस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो दैट इज़ बीइंग ओन बाय कर्ता अलोन. उसके पास सारी अथॉरिटी होती है. सी, अगर उस लैंड पर, ज़मीन पर लोन लेना है, ठीक है, लोन लेना है तो उसकी अथॉरिटी भी सिर्फ कर्ता के पास ही होगी. बिजनेस के लिए कोई लोन उस ज़मीन से लेना है तो वो भी सिर्फ कर्ता के पास अथॉरिटी होती है. अदर मेंबर्स हैव नाइदर एनी राइट टू मैनेज द अफेयर ऑफ बिजनेस नॉर एनी राइट टू टेक लोन ऑन दी प्रॉपर्टी. बाकी के जो मेंबर्स हैं ना तो वो उसके किसी चीज़ पर इंटरफेयर कर सकते हैं मैटर पे, और ना ही वो लोन ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? कर्ता, हु इज़ दी हेड ऑफ द फैमिली. राइट. कॉन्टिन्यूटी. The existence of Hindu undivided family is not affected by death or insolvency of a co-partner or even that of the कर्ता. अगर कर्ता की भी डेथ हो जाती है या जो उसका ओनर है इंसॉल्वेंट भी हो गया इन केस, ठीक है, तभी भी उसकी कॉन्टिन्यूटी रहती है. अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन बच रही है तो वो भी आगे कॉन्टिन्यूटी रहेगी उसकी. Inclusion of minor member. A person become a member in the family business because of his birth in the family, as we have just discussed. So the minor in the family are co-partner in the family business. Minors ultimately become the co-partners in the family business. Right? Here is the difference between the partnership and Hindu undivided family. पार्टनरशिप का ओरिजिन अगर हम पढ़ते हैं तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, और हिंदू अनडिवाइडेड में किसी एग्रीमेंट का नहीं हमें रिक्वायरमेंट होता है. बर्थ इन दी फैमिली से ही इसका अराइज हो जाता है. पार्टनरशिप में मैक्सिमम 10, बैंकिंग सेक्टर में बाकी में 20 की रिक्वायरमेंट होती है नंबर ऑफ मेंबर्स. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. फीमेल कैन बी द पार्टनर. Here, a female cannot be the member of the Hindu undivided family except in West Bengal. Minor can't be a partner. यहाँ पर male minor become a member merely by birth in the family. Partners की liability unlimited होती है, यहाँ पर कर्ता की liability unlimited होती है. Right and liabilities of all partners are governed by Partnership Act, और यहाँ पर governed by Hindu law and customs.
ऑल द पार्टनर्स कैन एक्टिवली पार्ट इन द फर्म्स बिजनेस. यहाँ पर केवल कर्ता मैनेज करता है एक चीज़, बिकॉज ही इज़ द ओनर, alone owner of the family right now. Then others become the co-partners. Mutual agency. Every partner is an agent as well as principal and can bind the partners in the firm in the deadline with the third parties. अगर किसी से पैसा बोरो किया है उन्होंने तो हर एक पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. यहाँ पर ओनली कर्ता हैज़ द अथॉरिटी टू इनकर डेप्ट एंड बाइंड द फैमिली टू इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी. कर्ता बिहाफ ऑफ फैमिली थर्ड पार्टी से डील करेगा, उसके पास ही सारी अथॉरिटी होती है. अगर कोई डेप्ट लिया है तो ओनली कर्ता विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर. इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप फर्म इज ऑर्डिनरली डिजॉल्व्ड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, बट यहाँ पर इट इज़ नॉट डिजॉल्व्ड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ को-पार्टनर. other become if another मतलब in the another generation the next become the co-partner then ultimately. Next is cooperative society. What is cooperative society? सी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं. अगर आपने पढ़ा हो, कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा शायद पहले भी, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए. सो दैट इज़ द सेम थिंग, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स who associate together to promote their common interest. जैसे सब लोग, 4 लोगों ने मिलकर ये प्लान किया, यार एक काम करते हैं, हमारी रोड बहुत ख़राब हो रही है और इस रोड को बनवाते हैं और इस पर प्लांटेशन कराते हैं. सो दैट इज़ अ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ दोज 4 पीपल. धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की और वो ऐसे ही काम करने लगे आगे. ठीक है, दैट इज़ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. द ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर सोशियो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर. बिना पैसों के तो कुछ नहीं हो सकता. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं यहाँ पर, और इकोनॉमिक, राइट. इट इज़ जनरली फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. इफ सम पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव एंड doing such kind of work, such kind of job, they have to get registered themselves under the Indian Cooperative Societies Act 1912. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई की जाती है किसी भी कॉन्सेवेबल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज सी, इसमें पैसों की भी ज़रूरत होती है. यू आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी. चाहे आप प्लांट्स लगा के कर रहे हो, चाहे आप रोड्स बनवा के कर रहे हो, ठीक है, और कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि 4 लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है उसमें. ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रजिस्टर्ड योर सेल्फ इन अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. उसके अलावा यू नीड मनी, डेफिनेटली यू नीड मनी टू गेट इनटू द कॉन्टिन्यूटी. So today there are a large number of cooperative credit societies, retail stores, building societies, marketing societies and producer societies which are formed and run on the basis of cooperation. हम सिर्फ इन चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो क्रेडिट सोसाइटीज़ जो पैसे उधार देते हैं, बोरो करते हैं जिनसे जाकर, रिटेल स्टोर्स बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज़, मार्केटिंग सोसाइटीज़ एंड प्रोड्यूसर्स इवन, राइट. What are the features of cooperative society? Voluntary membership. See, आप अपने आप वॉल्टियर करेंगे, इसमें किसी के प्रेशर से नहीं करेंगे. इट इज़ अ वॉल्ट्री प्योरली अ वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल जो एक होमोजीनियस ग्रुप से मिलते हैं, उनकी कॉमन इंटरेस्ट होता है. पीपल ज्वाइन करते हैं वॉल्ट्री, किस लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव एफर्ट. फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव एफर्ट. लोगों के साथ मिलकर सोसाइटी को सर्व करना और कुछ गेन करना, दोनों काम हो रहे हैं. इट हैज़ अ सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर. इट्स मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल, कोई भी ले सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर. दस इट इज़ सेक्युलर इन नेचर. आप वॉलंटियर करने वाले होने चाहिए. आप वॉलंटियर करोगे, यू कैन ज्वाइन, राइट. You're going to serve the society as well as if comparatively you'll get some profit out of that. आप कई सारे रिटेल स्टोर्स पे जाते हो, आप बोलते हैं ना आप मेंबरशिप कार्ड ले लो, तो इसे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, या बहुत सारी चीज़ें. तो ये भी एक इनिशिएटिव ही है. सेपरेट लीगल एंटिटी. Cooperative societies required to be registered with the registrar of cooperative societies.
जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि आपको रजिस्टर करना होगा इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। ऑन रजिस्ट्रेशन इट बिकम्स अ बॉडी कोऑपरेट and enjoys the benefit of perpetual succession and legal entity. अगर वंस यू विल गेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ, ये कॉरपोरेट बॉडी बन जाती है, आप सारे बेनिफिट्स लोगे इसके, ठीक है। किसी भी जितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई इसमें से आउट भी हो गया है तभी भी वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है। इसकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती है किसी के ज्वाइन करने से या छोड़ने से। It can hold the property in its own name. It can enter into contract with other person. The society can sue others and can be sued by others. ठीक है। आप यहाँ क्या करते हो, आप किसी भी मोटिव से कर रहे हो, आपको सोसाइटी को सर्व करना है, राइट। सो एनीबॉडी कैन टेक इनिशिएटिव इन दैट, कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। एनीबॉडी कैन मूव आउट फ्रॉम द कोऑपरेटिव फर्म. Okay, it has a separate legal entity as well, and it is being registered under the Cooperative Society Act 1912. Liability is limited. Why? The liability of member of a cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them in the form of shares. वो जो मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी रीज़न के लिए, so that is why the liability of member is always limited, right? Management and control. जी लेट्स सपोज आप अब एनजीओ भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट अगर एग्जांपल लेते हैं, कुछ सर्व करना है डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, उसके लिए आप लोग कुछ कुछ पैसा अपना लगाओगे उसमें, ठीक है। तो वो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही तो हो गई ना। आप ऐसा इतना नहीं कर सकते जितना आप करना चाहते हो। सभी मेंबर्स अपनी अपनी बजट के हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। इसमें कोई लीडर नहीं होता। वन मेंबर वन वोट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. Moreover, the member generally belongs to the area where the society is situated. See, किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम इसमें देते हैं, दैट मेंबर जनरली बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ वो सोसाइटी से, जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसको उसकी पूरी नॉलेज है. दिस इनेबल्स एवरी मेंबर टू टेक इंटरेस्ट इन इलेक्टिंग द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच विल लुक आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. इससे क्या होगा? एवरी मेंबर विल टेक इंटरेस्ट मेंबर्स को इलेक्ट करने में, मैनेजिंग कमेटी के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट नहीं है तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता. आप चार लोग मिलकर काम करने की सोचो, काम कर रहे हो, लेकिन वन हैज़ टू टेक इनिशिएटिव. मैं ये वाला एरिया संभालूंगा, मैं ये वाला एरिया संभालूंगा, तो दे बिकम द टू पीपल आउट ऑफ दोज फोर बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु विल लुक आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. बाकी लोग काम करेंगे, वो उनको रिपोर्ट करेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है. मैनेजमेंट मस्ट बी देयर. सर्विस मोटिव. Cooperative organization is established primarily with a view to render services to its member in particular and to society in general. मेन पर्पस ही ये होता है कि वो सर्विस रेंडर करें मेंबर्स को या सोसाइटी को, समाज को जनरली. इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट. दे वर्क फॉर प्रॉफिट, बट देयर अनदर मोटिव इज़ टू सर्व दी सोसाइटी ऑल्सो. ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, बट दे एम्फेसाइज ऑन गिविंग सर्विस, नॉट ऑन प्रॉफिट. अल्टीमेटली दे आर गेटिंग प्रॉफिट. ऐसी भी बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो सोसाइटी के लिए सर्व करती हैं, सोसाइटी को रेंडर करती हैं सर्विसेज. और सी, फ्री में तो कोई भी नहीं करेगा, वो अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, बट धीरे धीरे जब उन्हें लगेगा पीपल आर स्टार्टिंग गेटिंग इन्वॉल्व विद देम, सो दे विल स्टार्टिंग प्रॉफिट ऑल्सो, अर्निंग प्रॉफिट ऑल्सो, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं, राइट. Disposal of surplus. The surplus arising out of years working is not distributed among the members by the way of dividend. जो भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है लंबे टाइम से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मेंबर्स में. डिविडेंड मतलब इंसेंटिव मान लो, बोनस मान लो, कुछ भी समझ के, वो मेंबर्स में नहीं होता है. अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व फंड.
एक पोर्शन उसका फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर आगे कमिंग ईयर्स में अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम वहाँ से वो पैसा उठा लेंगे, अपना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन अ फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर, और उस पर एक इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली अमंग द मेंबर अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड विद इट बाई ईच अदर। बाकी का जो कुछ फंड में रिजर्व कर दिया, किसी को ज़रूरत पड़ी उसे वो कैपिटल दे दिया, उससे इंटरेस्ट लिया, वो पैसा बढ़ा, साथ ही में बाकी का जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर हो जाता है बाकी के मेंबर्स में, ठीक है। तो बेटा इसे घर पे एक बार रिवाइज करो, मेरिट्स हम इसके कल पढ़ेंगे। रिवाइज थॉरली अप टू हियर, अप टू फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। if in case any problem, just make me a call. Okay, have a good learning. Thank you.